Hi student, welcome back. So in previous video we discussed about how to become better if you are an average student. Before that we discussed about why to study and how to study. In this particular video I will discuss time management. So no matter you are strong or weak, this aspect is one of the very important thing, and most of us are not perfect at this. So this is one of the important videos, and if this is a follow-up of the video like previously, how to start as an average student. Once you had the routine, once you have the timetable, and once you figure out all your mistakes and weaknesses and start putting in hours, you will feel lack of time. Even as a good student, you will feel lack of time on doing everything because you have so many subjects to handle, schools, coachings and exams to handle. So let's start how to do a better time management. Okay, a few of the stuff inside this video I have already shared previously with Growthy Academy students, right? So I will discuss those only in detail because I think that is what I also know a better time management is. Okay, so first thing to start with, I would say divide a normal school day. School day means when once you go school, those days when you go school. You have to follow a 4S rule. uh, that 4S is: first S1 is sleep, second S2 is school, third S3 is surplus, and 4S is self-study. Okay, this is kind of approximate based on your school. When you can say, sir, my school is not 6 hours, it takes 7.5 hours. I am just calculating the school time, time when you reach your school and when you come out of school and come home. That is part of surplus. Okay, so first thing is to divide your day in a 4S rule, and what this 4S is in a normal school days look like. So you sleep approximately 12 to 6 a.m. and again this time can vary depending on you. And then 8 to 2 there is school time. Again this can vary from your school to school. It can be 7:30 to 1:30 or something, but that variation is again part of your management. Then I take S3 as surplus, in which you take 2 hours coaching and you do 2 hours transport to school and coaching, and in between you do 2 hours rest, right? Or I would say food and all those stuff. um, you would say, sir, rest is less. In addition to this 2 hours rest, you also have sleep, right? And again I removed all the transportation and all those stuff out of picture. Then the S4 is the most important time, which is self-study. And self-study, basically you should focus 2 hours self-study on school homework, which I don't think on an average there is no 2 hours school homework if you do it regularly. And approximately 3 to 4 hours, I would say, if you are in higher classes, 9th or 10th, you should at least do 4 hours of self-study. And that self-study means no school homework and nothing. Like coaching homework is okay because I guess most of the coaching homework we give is related to self-study, like making your revision notes or important stuff. So I think that you can make part of that plan. Again, one thing is, normally in a year you have 220 to 240 days of school, and apart from that there is 125 to 145 days of vacations. You would say, sir, do we get that many vacations? Yes, you get. I mean, no, none of the school works more than 230 to 35 days. You get 40, 54, 55 holidays for Sunday. You get a basic summer vacation, like till 8th 9th you get like 30 40 days summer vacation. 9th 10th you get like 10 15 days. Then there are like lots of holidays in India due to festivals, and I would say 30 40 holidays at least. So why I'm counting those holidays is because it's part of your time management. If you want to excel in stuff, or you want to become from average to a better student, you have to use those holidays. So this time management is for normal school days, so try to stick to this. Then I will discuss what should be your time management in normal days, normal holidays.
So I would say for holidays, just make the school part replace with schoolwork. So at least in every week you get 1 6 hour slot where you can do all your school homework. And luckily, on an average, you should get at least in a week 2 to 3 days holidays, counting like festivals and other stuff. So this is enough to do your all school work, assessment, assignment, notes preparation, everything. So what I meant to say is, don't bother to touch your 4 hours of self study with any of your schoolwork, and that 4 hours should be the most focused study you do in a whole day. Okay. And one more important thing is, yeah, as I told, try to prioritize your school assignment, revision, test preparation on those 120 to 135 holidays. And other part is, whenever you study, do smart study. And I have a general perception, or means generally all good students say that some topics are very important and compressed to other. Like if you do 20% topic of any chapter, there is some 20% important topic from which you will gain 80% of the marks. And then there is next 80% of the 80% of the chapter which gives you 20% marks. तो आप जब वो फिगर आउट करना स्टार्ट कर दोगे, राइट, व्हेन यू स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम, ज़्यादा समय आप स्पेंड करोगे, आपको वो दिखने लगेगा कि कौन से टॉपिक्स मुझे पहले करने हैं, बाद में करने हैं. So this is also part of smart study. Okay, so this will help you in maintaining better time management. Okay, let's I also did a subject wise breakdown how you can target weekly plan. ये approximate है. Like CBSE 3 days आप सेल्फ स्टडी का पार्ट मैथ्स को दे सकते हो, 2 दिन साइंस को दे सकते हो, राइट, एंड 1 दिन SST को दे सकते हो, और बच्चा 1 दिन विच इज संडे गिव इट टू लाइक अदर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर और जनरल. अगेन ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, नॉट स्कूल टाइम. ओके, स्कूल होमवर्क और स्कूल चीज़ें संडे को और उसमें करो, या 2 घंटे जो अलॉटेड स्कूल वर्क का टाइम है उसमें आप करो. ठीक. सिमिलरली फॉर ICSE थोड़ा सा सिलेबस उनका ज़्यादा होता है, तो आई वुड से 2 दिन आपको मैथ्स को देना चाहिए, 2 दिन साइंस को देना चाहिए, 1 दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी को, 1 दिन और जो है कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सैटरडे को करना है. और इसमें से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होगी, वो 1 दिन और संडे को आप कर लो. ओके. एंड अगेन दिस ब्रेकडाउन इज एज पर, डू दिस ब्रेकडाउन एज पर योर कंफर्ट. ठीक है, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स को 1 दिन में कर सकते हो, इट्स नॉट कि फिक्स ऐसा कोई रूटीन है, जैसा आपको सही लगे, जैसा आप, अगेन जितना आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, जितना आप अपने टारगेट्स लिखोगे, और आप इस चीज़ में बेटर हो जाओगे, और अपने आप को समझोगे कि किन सब्जेक्ट्स को मेरे को कब हैंडल करना है. सो ये फ्लेक्सिबल रखेंगे, लेकिन मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज CBSE मैथ्स को 3 डेज और साइंस को 2, अक्रॉस पूरे हफ्ते में इतना दे दो कि 3 डेज मतलब 12 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी गो टू मैथ, 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी शुड गो टू साइंस, एंड 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी शुड गो टू SST, एंड 4 आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा. और वो आप 1 दिन में 2 सब्जेक्ट ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है. सो दिस इज सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन. एंड राइट, अब मैं बात करूंगा व्हाट आर द बेस्ट सेल्फ स्टडी प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूवमेंट. लाइक आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो सेल्फ स्टडी, आई मीन टाइम मैनेजमेंट मीन्स डूइंग सेल्फ स्टडी, यू विल डू दैट टाइम मैनेजमेंट. क्या बेटर प्रैक्टिसेस है, ये भी मैंने पहले शेयर किया हुआ है, आई विल गो इन डिटेल. राइट, सेल्फ स्टडी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे, so self study doesn't start only on your room. You can start your self study even before that. First thing is, do, whenever you attend classes, coachings, do pre-reading before school and classes. This increases your focus. So first level of reading आपकी क्लास में ही हो जानी चाहिए. ठीक है, और बुक रीडिंग आपको जस्ट क्लास के बाद करना है in your self study hours to clear the concept more. Okay. Then second thing is, you have to maintain a diary. Okay, you have to maintain diary for your confusions, for your doubts or notes, everything. Okay, and other thing is, you have to maintain for maintaining your targets, daily targets. So maintain a diary, write topics to study you figure out during the class. एक डायरी में रोज आप क्लास में जाते हो तो क्या क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई वो चीज़ें लिखो, और टेस्ट आप लेते हो, टेक दैट इन सेल्फ स्टडी एंड क्रॉस इट व्हेन डन. आप कीप दिस एवरीथिंग नोटेड डाउन इन योर डायरी. मतलब जो भी आप क्लास में प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, या आप टेस्ट में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, कहीं आपको नोट डाउन करके उसको क्रॉस 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 क्रॉस
कंप्लीट करना है, खत्म करना है, ठीक है। अगेन थर्ड थिंग है, ये चीज़ है कि एवरी डे राइट 3 to 4 टारगेट्स। आई वुड प्रेफर इन नाइट, ताकि आपको रात में ही पता होगा दिन में आपको कल पूरे दिन क्या करना है, ठीक है। और हर दिन जब वो दिन कंप्लीट हो जाए तो उस दिन का आपको टारगेट चेक करना है आपका कितना हुआ, एंड उसमें आपके सजेशंस, आप एक्शंस डालोगे कि आपने कंप्लीट किया कि नहीं कंप्लीट किया तो क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट अपने आप को देना है कि यस आई वाज एबल टू कंप्लीट माय टारगेट, सो आई विल डू दिस, और आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माय टारगेट, सो यार कल मैं किसी दोस्त से नहीं बात करूंगा, कम एक आधे घंटा सोऊंगा, या इस तरह के आपको पनिशमेंट्स भी देने हैं अगर आप टारगेट्स नहीं कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। ये आपको लॉन्ग रन में बेटर टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा और कंफ्यूजन अवॉइड करेगा डे टाइम में, ठीक है, जब दिन में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको। और नेक्स्ट चीज इज की प्रैक्टिस। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एरिया। कोई भी वीक एरिया को इम्प्रूव करने का यही एक तरीका होता है। अगेन मैं एक कोड वर्क करता हूँ कि योर ग्रेटेस्ट सक्सेस लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ योर ग्रेटेस्ट फियर। सो आपकी जो भी वीक एरियाज है, वीक सब्जेक्ट है, इन लोग को टैकल करो, इनको छोड़ो मत, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा ग्रोथ एज ए स्टूडेंट वहीं से आने वाला है, ठीक है। सो दिस इज वन मोर सेल्फ स्टडी बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। तो एंड अगेन नेक्स्ट चीज है कि आप ये सब जब चीजें करोगे तो आपको डाउट्स आएंगे, सो ट्राई टू क्लियर दोज डाउट्स इन क्लास और स्पेशल क्लासेस, या विद इन स्टूडेंट ग्रुप बना के आप करो, या कोचिंग को एज ए लाइब्रेरी यूज करते हो तब आप आ सकते हो, आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो स्टार्ट नोटिंग डाउन योर डाउट्स एंड क्लियर इट इन स्पेशल क्लासेस, ठीक है। और अपने एज रोटरी में अगर आप पढ़ते हो तो आप टीचर से आप बोल सकते हो, एंड वी विल मेक श्योर कि आपके लिए स्पेशल क्लासेस या इंप्रूवमेंट क्लासेस हेल्ड ऑन किया जाए। और अगर ये चीज़ जितना आप ग्रुप में बोलोगे, 3-4 स्टूडेंट मिल के बोलोगे, तो हमारे लिए और आसान होता है कि हाँ ये एक इशू है हमारा, ठीक। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड रिवीजन। अब मोटिवेशन आपको रेगुलरली अपने आप को देना पड़ेगा, डेली। क्यों? क्योंकि इवन टुडे ऑन, आज भी मुझे हर दिन अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, या हर एक अच्छे स्टूडेंट को डेली मोटिवेशन अपने आप को देना पड़ता है कि हाँ आज मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, आई हैव टू स्टडी, और दिस आर द थिंग। क्यों? क्योंकि स्टडी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड अगर आप मोटिवेट अपने आप को नहीं करोगे तो हर दिन आपको डिमोटिवेशन होगा ही होगा। बट बेटर थिंग क्या है कि हर डिमोटिवेशन के बाद आपको पॉजिटिव सोचना है, एंड देन थिंक, लाइट माइंड हो, एक वॉक करो, लाइट तरीके से सोचो, हाँ ठीक है अब मैं रिफ्रेश हो गया, या आई हैव टू गो नेक्स्ट, ओके। एंड ट्राई करो कि अपनी स्टडी को अपने आप को कंट्रोल में लो अंटिल इट बिकम्स टू लेट, ठीक है। एंड मल्टीपल रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और 1 to 5 स्टेप्स को बार बार फॉलो करो और अपने आप को मोटिवेट करो और रिवीजन करो। सो दिस इज लाइक, जब आप सेल्फ स्टडी करने जाओगे, या सेल्फ स्टडी का एक पूरा एंड टू एंड फ्लो यही होता है कि पहले प्री रीडिंग करके क्लास में जाओ, क्लास में कोचिंग में डायरी बनाओ, और रात को सोने से पहले टारगेट्स लिखो, उसको कंप्लीट करो, और सेल्फ स्टडी टाइम में चीज़ों को प्रैक्टिस करो, ओके। एंड जो भी डाउट्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं क्लास में, स्कूल में, कोचिंग में, मोस्टली आप कंप्लीट करो। फिर भी स्पेशल क्लासेस चाहिए तो हमको बताओ, एंड देन एवरी डे, सिंगल डे आप अपने आप को मोटिवेट करो कि हाँ मैंने अपना टारगेट आप कंप्लीट किया, आई अकम्प्लिश समथिंग टुडे, ठीक है। और रिवीजन करो, इतना स्मार्ट प्लानिंग करो कि आप 3-4 रिवीजन करके एग्जाम टाइम में जा पाओ, और एग्जाम के पहले कोई मतलब पैनिक नहीं करना है, ज़्यादा स्टडी उस समय नहीं करना है, ओके। और अपने आप को ट्रस्ट करो, गिव योरसेल्फ टाइम, 6 मंथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू विल गेट एक्सट्रीम इंप्रूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ योर व्हाट इज योर करंट लेवल, ठीक है। एंड लेट्स टू लाइक रैप अप टाइम मैनेजमेंट का। जो भी चीज़ें हमने टाइम मैनेजमेंट की है, आपने डिसाइड किया है, जो भी वो किया है, इसको लेट्स सेट अप एंड स्टार्ट स्टडी। जल्दी से एक इस टाइम मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए एक स्टडी सिस्टम बनाओ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मोटिवेशन इज जनरली वेरी शॉर्ट टर्म, सो आपको रूटीन बनाना है, उसमें उससे स्टिक करना है ताकि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत कम पड़े, एंड आपका रूटीन ही आपको हेल्प करे। और जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो फोकस ऑन वन वर्क एट ए टाइम, ठीक है ना। रात को आप वर्क जो भी करना है कंप्लीट कर लो, प्रीवियस एनालाइज कर लो, जो वर्क कंप्लीट हो गया टारगेट्स उसको मार्क करो, अपने आप को मोटिवेट करो, ठीक है। और अपने सिलेबस को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो, एंड एक एक टास्क को एक एक टाइम पे लो।
ठीक है। एंड क्लीन अप एंड, और पढ़ाई करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेस्ड अप एरिया में पढ़ाई मत करो, और जहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा हो, डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं, मतलब क्लीन एंड क्लियर एनवायरनमेंट। सारी बुक्स अपने टेबल से हटा दो, जो पढ़ना है वो रखो, सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो, फ़ोन हटा दो, सब कुछ, और एक फील गुड फैक्टर वाले एरिया में पढ़ाई करो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे लाइट अच्छी हो, बिकॉज नेचुरली रिसर्च प्रूव है कि आप हाई एफर्ट्स आपको ज़्यादा गेन होता है जब एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में, क्लीन अप एनवायरनमेंट में आप पढ़ाई करते हो। ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है आप कोचिंग का हेल्प ले सकते हो, यहाँ के आप लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो, रात को आप रुक के पढ़ सकते हो, हमको कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है। वंस यू हैव क्लीनड अप योर स्टडी एरिया एंड स्टडी पॉइंट, आपके पास सारे मटेरियल्स है, सारे प्लानिंग है, जस्ट स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है ना। वेट नहीं करो कि आप पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, अब जस्ट तुरंत हिट करो। पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत टफ होगा, धीरे धीरे वो तुरंत आप फ्लो में आ जाओगे, लेकिन इतना दिमाग मत लगाओ कहाँ शुरू करें, क्या करें। डू नॉट हेजिटेट अबाउट स्टार्टिंग, जस्ट गेट गोइंग विद योर असाइनमेंट, योर चैप्टर, स्टार्ट रॉ एंड ऑर्गेनाइज। सबसे आपने ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, अब जब स्टार्ट करो तो जस्ट स्टार्ट। डोंट थिंक कि 1 2 3 यूनिट 1 ऐसा कुछ नहीं, जस्ट स्टार्ट रॉ और अनऑर्गेनाइज, एकदम ब्लैंक माइंड के साथ स्टार्ट करो। ठीक है। एंड so once you start you will feel comfortable. don't wait for any amazing idea कि कब हम स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे आज की पढ़ाई, नहीं, तुरंत स्टार्ट करो। ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर आप तुरंत नहीं स्टार्ट करते हो, यू विल एक्चुअली गेट डिमोटिवेटेड बिफोर इवन स्टार्टिंग स्टडी। सो हमेशा ये एक बड़ा चैलेंज होता है पढ़ाई हर दिन की सिटिंग में कि कैसे पढ़ाई बैठे, तुरंत आप बैठो, अपने आप बाकी चीज़ पता लग जाएगी। डोंट थिंक एनीथिंग। ठीक है। स्टार्ट एज ए ब्लैंक पेज। अगर आप इन बेटर ब्लैंक पेज की तरह स्टार्ट कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट सिनेरियो टू स्टार्ट स्टडीज। और एक और चीज़ आप याद रखना कि हमारा माइंड जो है पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस लेता है। मतलब ये है, आपका माइंड हमेशा वो बोलेगा जो सबसे आसान हो करने के लिए, सबसे इजी टॉपिक पढ़ने को, इजी काम करने को, या पढ़ने को ही नहीं बोलेगा। तो हमारा दिमाग बहुत वियर्ड है। सो नेवर टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, टेक पाथ विच फोर्सेस यू। मतलब अगर आप कुछ भी करने की कोशिश अच्छा करोगे ना पढ़ाई में, या पढ़ने की कोशिश करोगे, या कोई टफ चीजें पढ़ने की कोशिश करोगे, यू विल बी सिवली, आपकी खुद का इमोशंस आपको चैलेंज करेगा, नहीं नहीं, आपके अंदर की सारी फोर्स बाहर आएगी कि नहीं करना है, ये सबसे आसान तरीका बोलेगा कि ये कर लो, आज स्कूल का होमवर्क एक करो, नोट्स लिख लेते हैं यार, सिर्फ यही बहुत है, स्कूल का कॉपी कैट काम कर लेते हैं। नहीं, पहले वो नहीं करना, पहले टफ काम करना है। यू शुड नेवर टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। ठीक है। ये इनबिल्ट ह्यूमन नेचर है, इट्स अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। जब हम लोग केवमैन थे, जब हम लोग बहुत पुराने, हम अपने आप को बचाने के लिए केव्स में रखते थे, तब से ह्यूमन बीइंग में ये इंस्टिंक्ट डेवलप हो गई है कि सबसे जो लीस्ट रेसिस्टेंट पार्ट है, जो सबसे इजी पार्ट है, वो किया जाए, कोई अल्टरनेट चीज़ें या चीज़ें नहीं ट्राई करनी है। ठीक है। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आप टफ पार्ट लेते हो, हार्ड जो सबसे टफ चीज़ है वो करते हो, या तुरंत पढ़ने बैठते हो, रेजिस्टेंस नहीं करते हो, यू विल सी, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आप कितने बियॉन्ड जा सकते हो सक्सेस में, और आप कितना बेटर कर सकते हो लाइफ में। सो टेक द पाथ। सो ये चीज़ें वो है कि जब आप सेल्फ स्टडी का प्लान बना लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए पढ़ने बैठे हो, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना। मतलब फोकस वन वर्क एट ए टाइम, डेवलप अ स्टडी प्लान, clean up your work area, start as it is blank, don't hesitate, don't think anything। और हर पॉइंट पे पढ़ाई के समय वो चीज़ें लो जो रेजिस्टेंस दे, जो आपको इमोशनली फोर्स करे कि यार मतलब ये टफ है, ये चीज़ मुझे करना है। डोंट टेक द इजी वर्क। ठीक है ना। पहले टफ वर्क को कंप्लीट कर लो, फिर इजी वर्क को बाद में करना। ठीक। ओके। नेक्स्ट हमने टाइम मैनेजमेंट डिस्कस किया, बाकी इसको और डिटेल में आप जितना ट्राई करोगे उतना आप बेटर होते जाओगे टाइम मैनेजमेंट पे। कोई भी, आई हैव बीन वर्किंग विद टाइम मैनेजमेंट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, लाइक 10 years, लेकिन आई एम स्टिल नॉट परफेक्ट। सो आप स्टार्ट करो, एंड आप थोड़ा बहुत भी बेटर होगे ना, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालता है आपके रिजल्ट्स पे, आपके पढ़ाई करने के मोटिवेशन पे। सो स्टार्ट डूइंग द टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली। ओके। आपका टाइम मैनेजमेंट इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आप 2 से 3 4 बार रिवीजन करके फाइनल एग्जाम्स के पहले जा सको हमेशा। ठीक। एंड डू यूज स्मार्ट स्टडी टेक्निक। सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू हैंडल टफ सब्जेक्ट्स। बहुत सारे बच्चे हम लोग कंप्लेन किए, सर टफ सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करें, क्या मतलब टेक्निक्स यूज करने चाहिए उसके लिए हमको।
कि मुझे नहीं SST समझ में आती, मुझे कंप्यूटर नहीं समझ में आता, मुझे इंग्लिश के लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मुझे साइंस में फिजिक्स में प्रॉब्लम है। ये सब्जेक्ट्स अगर मेरे हर इंसान का टफ सब्जेक्ट अलग होगा, बस इनको टैकल करने का तरीका एक होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू हैंडल टफ सब्जेक्ट। ठीक है, तब तक डू अ बेटर वर्क एट टाइम मैनेजमेंट एंड सी व्हाट ऑल यू कैन अडेप्ट। ठीक है ना। और टाइम मैनेजमेंट कोई एक दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है, आपको टाइम लगेगा। 3 से 6 महीने में आप ठीक ठाक बेटर हो जाओगे, विच इज़ इनफ फॉर टिल 10th लेवल, एंड देन यू विल। बट अगर आप करोगे नहीं वो टाइम मैनेजमेंट, तब तक आप एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स नहीं ला पाओगे और एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स नहीं बन पाओगे। और बाउंड्री बिटवीन किसी भी एक एवरेज स्टूडेंट और एक स्मार्ट स्टूडेंट के बीच में जो बाउंड्री होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कंबाइंड विद डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क इज द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी मेंटल लेवल 4th इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये मैं हमेशा मानता हूँ और मोस्ट ऑफ अच्छे बच्चे ये मानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट और हार्ड वर्क और डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अपने आप को अंडरस्टैंड करना कि आपकी क्या वीकनेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, सो लेट्स डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो हाउ टू हैंडल टफ सब्जेक्ट। ओके।